Hello everyone, in this video I will discuss all the important formulas of wave motion. Let's start with the point number 1. Wave velocity nu equal to nu equal to v equal to n lambda. या हम c equal to न्यू लैम्डा भी बोल सकते हैं. c भी वेलोसिटी होती है ना, n की जगह हम न्यू भी लिख सकते हैं. न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. c क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ एयर. And lambda is as it is. And lambda is wavelength of the wave and n is frequency of the wave. Wave velocity of transverse wave की क्या होती है? v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम. टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. एम इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. वी सॉलिड की जो होती है वो ज़्यादा होती है, वी लिक्विड की कम होती है, और वी जो गैस की होती है वो और भी कम हो जाती है. ठीक है. वेव वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव. वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई अपॉन रो. ई है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम. वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव इन एयर एट एनटीपी अकॉर्डिंग टू लैप्लेस करेक्शन. लैप्लेस करेक्शन के अकॉर्डिंग जो साउंड की वेलोसिटी होती है एयर में एनटीपी पर, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी upon rho. P is pressure of the air, rho is density of air, and gamma is ratio of specific heat. Speed of sound waves in solid rod. V is equals to under root gamma upon rho. Y क्या है यहाँ? Y upon rho. Y है Young's modulus of rod and rho is density of rod material. Speed of sound waves through liquid. तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन रो हो जाती है. के है बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. v साउंड की होती है अंडर रूट गामा अपॉन 3 इंटू वी आर एम एस. इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इन वेरियस forms. If simple harmonic progressive wave is traveling along positive direction of x-axis, then it can be represented by y is equals to a sin omega t minus 2 pi x upon lambda. y is equals to a sin 2 pi को कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल t अपॉन कैपिटल t माइनस x अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं. y is equals to a sin 2 pi अपॉन लैम्डा vt माइनस x. y is equals to a sin 2 pi nt माइनस x अपॉन लैम्डा. y is equals to a sin 2 pi n t माइनस x अपॉन लैम्डा. इन सभी फॉर्म्स में इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रेवलिंग along negative direction of x-axis, then it can be represented by y is equals to a sin omega t plus 2 pi x upon lambda. A differential equation of wave motion is 2d square y upon dx square equal to 1 upon v square d square y upon dt square. Phase change at distance x पर जो phase change होता है वो होता है 2 pi x upon lambda. After time interval t जो phase change होता है वो होता है delta equal to 2 pi t upon capital T. Intensity of sound E is equals to 2 pi square a square n square rho into v. A है amplitude of wave, n is frequency, rho is density, v is velocity of wave. Power of sound source at distance d from the source I is equals to p upon 4 pi d square. Power क्या हो जाएगी यहाँ से? I 4 pi d square. I क्या है? Intensity of sound at that point. Intensity of loudness or of sound according to Weber's law. जो relation होता है between loudness L and intensity of sound I में वो होता है L is equals to k log E I. L is equals to log I upon I naught, where I naught is threshold intensity or minimum intensity that can just be heard. Intensity of sound is measured in watt per meter square and loudness is measured in decibels. dB से डिनोट करते हैं इसको. इंटेंसिटी लेवल L is equals to log to the base 10 I upon I naught. I क्या है? इंटेंसिटी एट द पॉइंट. I naught क्या है? जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग. नेक्स्ट पॉइंट, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल. वैन टू वेव सुपर इम्पोज करेंगे तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है a इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है i इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi एंड दिस इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2. a1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? i1 के इक्वल. तो a2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? i2 के इक्वल प्लस 2 अंडर रूट a1 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट i1 और a2 को अंडर रूट i2 cos phi. इफ a1 a2 be the amplitude and i1 i2 be the corresponding intensities होती हैं तो i1 जो होता है वो a1 के स्क्वायर के इक्वल होता है और i2 a2 स्क्वायर के इक्वल होता है. तो i1 अपॉन i2 का रेशियो आता है a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर. एज बोथ सोर्सेज इंटरफेयर रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, जो तो रेशियो होता है इन इंटेंसिटीज का वो क्या होता है? i max अपॉन i min इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ बीट y इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2
t sin 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. n1 n2 क्या है? frequency of two interfering sound wave. unknown frequency of fog can be determined by the formula x equal to n plus minus p. use positive sign if number of beats decrease होती हैं तो positive sign और increase होती हैं तो negative sign. apparent frequency of sound heard by the listener. जब listener move करता है towards stationary source of sound, apparent frequency heard by listener n dash कितना होता है? v plus vl upon v into n. velocity of the sound है v और n क्या है? original frequency. vl क्या है? velocity of the listener. जब लिसनर मूव करता है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, तब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है हियर्ड बाय द लिसनर एंड डैश इक्वल टू v माइनस वी एल अपॉन v इंटू एन. अब जब सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, तब जो ये होता है एन डैश की वैल्यू वो होती है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन. वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, when source of sound is moving away from stationary listener n dash equal to v upon v plus vs into n. अब जब both source of sound and listener are moving in same direction and listener is moving towards source of sound, then n dash equal to v, दोनों में प्लस लगाते हैं, v plus vl upon v प्लस वी एल इंटू एन. अब जब सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तब एन डैश इक्वल टू वी प्लस वी एल तो एज इट इज रहता है और वी माइनस वी एस कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इनटू एन. व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, तब जो एन डैश की वैल्यू होती है वो होती है वी माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन. अब ई को देखते हैं. मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, द फॉर्मूला फॉर इन इको फॉर द इको ऑफ साउंड इज वी इज इक्वल्स टू 2s अपॉन टी होता है. वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एस है डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द साउंड सोर्स, टी है टाइम ऑफ इको, एस इक्वल टू वी टी अपॉन 2. ए सोर्स इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ डेप्थ है उसकी एच. Splash of sound will be heard after a time t is equals to under root 2h upon g plus h upon v. v क्या है? velocity of sound. अब a person stands at a distance d from a hill, produces the sound. He travels the distance x in time t seconds and hears the echo sound. Then vt equal to 2d plus minus v naught into t. vo क्या है? velocity of observer. v क्या है? velocity of sound. equation of a stationary wave की equation होती है y is equals to 2a cos 2 pi x upon lambda sin 2 pi t upon capital T. A है amplitude of each wave, T है period of each wave. Now case 1, when wave is reflected from free end. In case of equation of a stationary wave के केस में y is equals to 2a cos 2 pi x upon lambda sin 2 pi t upon capital T लिख देते हैं. ठीक है. Next case 2, when waves are reflected from rigid boundary. In this case equation of a stationary wave is y is equals to 2a sin 2 pi x upon lambda to cos 2 pi t upon capital T. Frequency of a stretched vibrating string n is equals to p upon 2l under root t upon m. p क्या है? number of loops. t क्या है? tension in the string. m क्या है? mass per unit length of wire. l क्या है? length of wire. Now various modes of vibration. Fundamental mode of vibration, frequency of vibration n1 is equals to 2 pi under root t upon m है. It is known as natural and fundamental frequency बोलते हैं इसको. In second mode of frequency vibration, frequency of vibration n2 is equals to 2 upon 2l under root t upon m 2 and 1. It is known as second harmonic or first overtone. In third mode of frequency vibration, frequency of vibration n3 equal to 3 upon 2l under root capital T upon m. This is equal to 3 and 2. It is known as third harmonic or second overtone. Laws of vibrating string. Law of length, first law, n जो है वो inversely proportional होता है l के, n l equal to constant. ठीक है. एस टी एन एम आर कॉन्स्टेंट. लॉ ऑफ टेंशन का सेकेंड लॉ होता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. टी एन एम आर कॉन्स्टेंट, एन अंडर रूट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. लॉ ऑफ मास थर्ड लॉ होता है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम. एस टी एन एम आर कॉन्स्टेंट, एन अंडर रूट एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट. लॉ ऑफ रेडियस होता है फोर्थ लॉ, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. एस टी एल एंड रो आर कॉन्स्टेंट, एन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. Next is law of volume density. N is inversely proportional to under root rho. S, T, L and R are constant. N under root rho equal to constant. Vibration of air column in second organ pipe. Frequency of vibration of air column
N1 इक्वल टू V अपॉन 4L होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड मोड की होती है N2 इक्वल टू 3V अपॉन 4L, इसको थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। अब थर्ड मोड की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो कितनी है, N3 इक्वल टू 5V अपॉन 4L, इट इज़ नोन एज फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप में देखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम N इक्वल टू V अपॉन 2L होती है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एयर कॉलम की वाइब्रेशन है, ओपन ऑर्गन पाइप में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम सेकेंड मोड की होती है N2 इक्वल टू 2V अपॉन 2L, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम थर्ड मोड की होती है 3V अपॉन 2L, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। रेजोनेंस ट्यूब, इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो वेलोसिटी होती है साउंड की एयर में, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय V is equals to 4L, L 4N, L plus 0.3 into D. N क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क, L क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ, D is डायमीटर इंटरनल ऑफ ट्यूब। इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो वेलोसिटी होती है साउंड की एयर में, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, V is equals to 2N, L डैश माइनस L। L क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम एट फर्स्ट रेजोनेंस, L डैश क्या है, रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम एट सेकेंड रेजोनेंस। नाउ एंड करेक्शन देख लेते हैं। एंड करेक्शन E इक्वल टू L डैश माइनस 3L अपॉन 2। इस एक्सपेरिमेंट में जो एंड करेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1 अपॉन N1 माइनस N2। ठीक है, L1 क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू टर्निंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी N1। L2 क्या है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू टर्निंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी N2। अब Maltese experiment, frequency of the tuning fork is twice the frequency of a string. It is given by N is equals to 2N equal to P upon L under root T upon M. Okay, now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.